Jai Gurudev, dear students, children, we are proceeding with our this chapter number 2, nutrition in animals. Okay, under this chapter, I have taught you about the nutrition and what are the different steps of nutrition. We have studied in short in this, and in some small organisms like Hydra, Paramecium, amoeba, how this nutrition process takes place, that we have studied in the last class. And I have explained you about the digestion in case of human beings also. So this digestive system or alimentary canal is important, children. Its diagram also very important. You should try to draw this diagram, because you have already studied in the previous classes, like junior classes. So this is in little bit more in detail. So today we will study about the digestive system and digestion of food in detail. So let's see what happened. First step of this nutrition is ingestion. So ingestion means the process of taking food through the mouth is ingestion. So when we take food through our mouth, that process is ingestion. Then after ingestion, what will happen to our food? We chew food with our teeth, breaking it down into smaller pieces, and we have different types of teeth to perform different actions. So children, we are having different types of teeth, which we have studied in class 3 or 4. I think you have already studied, but it is the repeated part. I'll tell you that फ्रंट के जो 4 टीथ होते हैं आपके, ये एक जॉ की हम बात कर रहे हैं. अपर एंड लोअर जॉ दोनों में ही इक्वल टीथ होते हैं. सो फ्रंट वाले जो 4 होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? इंसाइजर्स. ओके, उसके इंसाइजर्स के बाद ये जो होते हैं, इनको बोलते हैं लिटिल बिट पॉइंटेड टीथ. दे आर कॉल्ड केनाइन्स. दे आर शार्प, दे आर हैविंग शार्प एजेस. So canines, behind the canines, they are premolars. 2 premolars each side, they are present. And after that, teeth which are present at the last of our jaw, they are called molars. They are flat in structure and they are called molars. So children, incisors we use to bite the food. Canines we use to tear the food. Okay, and premolars and molars, they are grinding teeth, and with the help of premolars and molars we grind the food. First we bite, we tear, and then we grind with the help of different types of teeth. So this is the function of different type of teeth. The first teeth that babies develop by times they are 3 years old are known as milk teeth or primary teeth or baby teeth. So children, you also know, when you were so small, up to the age of 3, then your teeth becomes arisen in your mouth, and those teeth are called milk teeth or primary teeth or baby teeth. Okay, but after some age, after the age of 6 or 7, it depends on different children, they start losing. Okay, falling. आपके टीथ जो होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और निकलना शुरू हो जाते हैं, और वो जब निकल जाते हैं तो उसकी प्लेसेस पे नए टीथ आ जाते हैं. Those teeth which come or replace the your milk teeth, they are called permanent teeth. Okay, जो नए वाले टीथ आपके आते हैं टूटने के बाद, उनको क्या बोलते हैं? permanent teeth. So permanent teeth start to develop at about age 6. 6 एज में आपके नए टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं. Now these are the types of teeth. I have explained you what are their structure, what are their functions,
that they have given here. You should read your own this paragraph, and if you have any problem you can ask me. वैसे मैं आपको ये सारे टीथ के फंक्शन भी समझा चुकी हूँ कि हम इनसे क्या फंक्शन लेते हैं, डिफरेंट टीथ हमारे क्या क्या फूड को कैसे ब्रेक करते हैं. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट इज अ टंग. You know children, without the help of tongue also we can't chew our food. So tongue is also equally important. The tongue also helps us in eating food. It helps in pushing the food towards our teeth. Means our tongue help us in eating or grinding the food, because tongue only push the food towards our teeth. Mixing it with saliva, the saliva which is produced by the salivary glands, that which moist the our food, that saliva also mixed with the help of our tongue and enables us to swallow it. Now third function of tongue is to swallow the food. जब हम फूड को निगलते हैं, swallow करते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारी टंग ही उसको पुश करती है. The tongue has small taste buds spread across its surface to help us sense sweet, salty, sour, bitter tastes. The tongue also helps us to speak. Now you see children how many functions our tongue is performing. Means here they have written that tongue has small taste buds. With the help of that we can taste the food, whether it is sweet in taste, salty, sour or bitter in taste. Okay, and it also helps us to speak. So taking care of our teeth and gums, ये जो पैराग्राफ है चिल्ड्रन, ये स्पेशली आप लोगों के लिए दिया हुआ है कि जो हम अपने टीथ या गम्स की जो केयर है वो प्रॉपरली हमको करना चाहिए. ओके, सो वी कैनॉट सी बैक्टीरिया बट दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इवन इन आवर माउथ. ऑफ कोर्स नॉट all bacteria are harmful. However, some bacteria that live in our mouth feed on remaining food particles. This happens when we do not brush or clean our mouth properly after eating. The bacteria then produce acids that can dissolve tooth enamel. Tooth enamel होता है ये जो आपके टीथ की जो हार्ड लेयर होती है, ऊपर वाली वाइट लेयर, दैट इज कॉल्ड टूथ इनेमल, causing tooth decay, also known as dental caries. Besides brushing twice in a day, we should also choose healthy snacks including fruits, nuts and veggies instead of sugary snacks or beverages. अब चिल्ड्रन इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या दिया है कि जब हम फूड लेते हैं, कोई भी टाइप का जब हम फूड खाते हैं, स्पेशली जो आपका या तो शुगर वाला फूड होता है, जैसे हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें शुगर होता है, चॉकलेट्स खाते हो आप, टॉफ़ीज़ खाते हो, तो ऐसे वाले जो फूड होते हैं जब हम वो खा लेते हैं और उसके बाद हम ब्रश नहीं करते, अपने माउथ को अच्छे से रिंस नहीं करते वाटर से, तो क्या होता है, हमारे टीथ जो होते हैं उनमें जो फूड थोड़ा बहुत रह जाता है उनमें बैक्टीरिया डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. और जब वो बैक्टीरिया हमारे टीथ में डेवलप होते हैं वो हमारे उस रिमेनिंग फूड पे फीड करते हैं, उस फूड को खाते हैं वो, और वहाँ से वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं. और जो एसिड वो प्रोड्यूस करते हैं उस एसिड से हमारे जो टूथ का इनेमल होता है, जो टीथ की जो ऊपर वाली लेयर होती है, वो डिज़ोल्व होने लगती है. डिज़ोल्व मीन्स वो वीक होने लगती है, गलने लग जाती है. विच कॉजेस टूथ डिके, और उससे हमारे दांत जो है वो सड़ने लग जाते हैं.
विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेंटल कैरीज। उसको हम डेंटल कैरीज भी बोलते हैं, दांतों के सड़ने को। उसके बाद उन्होंने ये दिया है कि बच्चों हमें डेली 2 बार ब्रश ज़रूर करना चाहिए, सुबह उठ के और रात को सोने से पहले, क्योंकि पूरी रात हमारी जो होती है उसमें हमारे जो टीथ होते हैं उनमें थोड़ा बहुत जो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं उनमें ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। इसलिए बिफोर स्लीपिंग यू शुड ब्रश योर टीथ एंड इन द अर्ली मॉर्निंग यू ब्रश योर टीथ। सो वी शुड ऑल्सो चूज़ हेल्दी स्नैक्स। उसके बाद उन्होंने खाने का बताया है कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए। हमें फ्रूट्स लेने चाहिए, नट्स लेने चाहिए और वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। इसकी जगह कि हम शुगरी चीज़ें खाएं, कुछ और स्नैक्स खाएं, जैसे आप तली वली खाते हो, ये चिप्स खाते हो, नमकीन खा लेते हो, ये सब चीज़ों को छोड़ के, या ऐसी जो शुगरी चीज़ें होती हैं या बिवरेजेस बोलते हैं हम ड्रिंक्स को, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो या फिर हम चाय कॉफ़ी ये जो लेते हैं, ये सारी बिवरेजेस में आती हैं जो हम रिफ़्रेश होने के लिए पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें पीने से अच्छा है कि हमें ऐसी वाले फ्रूट्स, नट्स और वेजिटेबल्स लेना चाहिए ताकि हमारे टीथ हेल्दी रहें। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द इंजेक्शन पार्ट। अब इंजेक्शन हमारे माउथ तक कंप्लीट हो जाता है। देन नेक्स्ट कम टू डाइजेशन। अब फूड हमारी ईसोफेगस पार्ट से स्टमक में पहुंच चुका है। So what happened here that we will study. So next is digestion. The process of digestion starts in the mouth itself when you start chewing. Does your favorite dish make your mouth waters? That water secreted by your mouth is saliva, which consists of digestive juices to break down the food. So children, here what they have written, they said that digestion process starts in our mouth. As we chew food, start chewing food, our mouth watering. Okay, our mouth starts watering. So that water which is coming in our mouth, that is called saliva. Okay, so if you think about your favorite food, then your by thinking also your mouth starts watering. So this water is secreted in your mouth from the salivary glands. Okay, so that secretion is called saliva, and this saliva consists of many digestive juices. And those digestive juices help to digest food. So digestion जो होती है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है. Then after the food is swallowed, जब हम फूड को निगल लेते हैं, it slides down the esophagus. When it reaches the esophagus, also called the food pipe, the esophagus connects the mouth to the stomach. So children, our esophagus connect our mouth to the stomach, and through esophagus food moves from the mouth to stomach part. So esophagus is made up of muscles. The muscles is the digestive tract, help the food move by creating a wave like movement called peristalsis. So children, in case of esophagus, how food moves? Here some wave like movement starts when food enters into the esophagus. You can see here where the food particle is there, the muscles of esophagus, they start pressing the food down into the stomach. Slowly that movement goes down as it pushes the food into the stomach. So this movement of muscles of esophagus is called peristalsis.
सो पेरिस्टाल्सिस टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, और ये पेरिस्टाल्सिस जो है ये पूरी हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये देखिए जो मैंने आपको माउथ से लेके और पूरी एनस तक जो होती है, दिस पेरिस्टाल्सिस मीन्स दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द फुल एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरे में ये मूवमेंट होती है, तभी तो हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद आगे मूव होता जाता है। ओके, सो दिस हेल्प्स us digest food whether we are standing or laying down, including plenty of fiber in our diet helps this movement. Now children, here they have written that this peristalsis help us to digest our food, because if food will move from one part to another, then only it can digest. Okay, so that's why when we stand or when we lay down, this our food or because of this contraction of muscles, this movement starts and ultimately it helps us to push the food and digest the food in various parts. So it is a stomach. Okay, in the stomach also food start digestion. So the stomach is like a J-shaped sac made of muscles and has the capacity to hold up to 2 liters of food. So children, our stomach is a J-shaped. You can see here like this we are writing a J. So it is J-shaped organ and it has so many muscles. Its walls are muscular and start moving as the food enters into the stomach. And when food enters into the stomach, then it starts movement, and also it has elastic walls, and as we fill food inside it, it enlarges like a bag and it can hold 2 liters of food in it. Okay, so depending upon the food eaten, it stays in the stomach from few minutes to a few hours. The inner lining of the stomach secretes hydrochloric acid and digestive juices. It also produces mucus which protects the inner lining of the stomach from acid, preventing the stomach from digesting itself. अब देखो चिल्ड्रन, इसमें उन्होंने क्या बताया है इस पैराग्राफ में कि हमारे स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उनमें से क्या क्या सिक्रीट होता है। एक दो डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रीट होते हैं और दूसरा एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये भी हमारे स्टमक की वॉल से ही सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हमारे स्टमक की वॉल को डैमेज ना कर दे, इससे पहले ही वहाँ पे म्यूकस सिक्रीट हो जाता है। ओके, म्यूकस ऑल्सो स्टार्ट सिक्रीटिंग फ्रॉम द स्टमक वॉल, और जब म्यूकस सिक्रीट हो जाता है तो पूरे हमारे स्टमक की वॉल पे म्यूकस जो है अपनी एक लेयर बना लेता है। म्यूकस इज़ अ स्टिकी मटेरियल और ये एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है ताकि जब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब प्रोड्यूस हो तो हमारी स्टमक की वॉल इससे प्रिवेंट उसको वो कर दे और वो खुद की वॉल को ही ना डाइजेस्ट कर दे या स्टमक की वॉल ही ख़राब ना हो जाए, इसलिए म्यूकस उसको प्रिवेंट करता है।
Okay, so what is the function of this strongest acid, hydrochloric acid? Here they have written the secretion of hydrochloric acid kills some harmful bacteria that might enter along with the food. अब चिल्ड्रन, जब हम फूड लेते हैं तो बहुत सारे उसमें जर्म्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे एयर में, वाटर में, सब जगह पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं और वो हमें दिखाई भी नहीं देते। तो बाय मिस्टेक जब हम फूड के साथ उनको ले लेते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उनको किल करने का काम करता है। ओके, सो द डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक हेल्प ब्रेक डाउन प्रोटीन्स into simpler usable form, so the food is partially digested in the stomach itself. अब क्या है, स्टमक में दूसरा फंक्शन क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको वो ब्रेक डाउन कर देते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, और उनको सिंपलर फॉर्म में, जो हमारी बॉडी यूजेबल फॉर्म में, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हमारी बॉडी यूज़ कर सकती है। ओके, सो इतना जो डाइजेशन होता है या जर्म्स किलिंग करने का काम होता है ये स्टमक में हो जाता है। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि पार्शियल जो है वो डाइजेशन यहाँ पे हो गई। अब भी इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और वी कैन से फैट्स, दे ऑल आर नॉट डाइजेस्टेड हियर, सो दे विल बी डाइजेस्टेड इन आर स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो फूड फिर कहाँ से जाता है, स्टमक से फिर कहाँ पहुँच जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए ये जो स्टमक है इससे फूड कहाँ गया, पास हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो बहुत सारी लेयर्स वाली होती है, कॉइल्ड। सो देन द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. It is a long tube-like part of the digestive tract that connects the stomach and the large intestine. So children, ये एक लॉन्ग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट ये बहुत ही कॉइल्ड होता है. ओके, एंड ये जो जितना भी कॉइल्ड पार्ट है, इसको अगर हम सीधा करके देखें तो ये बहुत एक लॉन्ग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें से हमारा फूड पास होता है और उसमें बहुत सारी डाइजेशन जो है वो होने लगती है. देन मसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स the food with more digestive juices. Some of the juices are produced in the small intestine itself, while others are secretions of liver, pancreas, organs which are located just below the stomach. अब कुछ जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो तो स्टमक की स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से ही सिक्रीट होते हैं, जो स्टार्च को स्प्लिट अप करेंगे और स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके फूड में प्रेजेंट हैं, फैट्स जो प्रेजेंट हैं वो आपके उसको डाइजेस्ट करेंगे. बट उसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा लिवर गॉल ब्लैडर के थ्रू और पेनक्रियाज, ये दो ग्लैंड्स जो होती हैं ये भी अपनी सिक्रीशन यहाँ सिक्रीट कर देती हैं. ओके, सो आफ्टर दिस liver, the reddish brown organ, plays a major role in digestion. It secretes bile juice which is then stored in a small sac called gallbladder. Bile juice helps in breaking down fats into simpler substances. Pancreas is an organ situated behind the stomach. It secretes pancreatic juices which help in breaking down carbohydrates, fats, proteins. This is how digestion takes place in the mouth, stomach and the small intestine. अब
डाइजेशन जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते। ओके, वो कैसे? क्योंकि जब हमारा लिवर जो होता है ये एक सिक्रीट करता है, सिक्रीशन लिवर से, और वो कुछ देर के लिए जो सैक लाइक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर मैंने आपको दिखाया था, आप देखिए ये वाला ग्रीन वाला, इसमें ये लिवर से जो भी सिक्रीट होता है बाइल जूस वो इसमें स्टोर हो जाता है, और जैसे ही फूड एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये जूस सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है। और उसके साथ साथ ये जो पैनक्रियाज है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट ऑल्सो स्टार्ट सिक्रीटिंग पैनक्रियाटिक जूसेस। सो बाइल जूस हेल्प टू डाइजेस्ट फैट्स and pancreatic juices help us to digest here carbohydrates, fats and proteins. Okay, so these all the things or all the types of food materials, or we can say nutrients, are digested here up to the small intestine. Now digestion is completed. After this absorption process starts. Okay, so absorption, how food we can say nutrients absorb from the small intestine. Absorption also starts in the small intestine. So most of the absorption of nutrients takes place in the small intestine. Small intestine consists of 3 parts: duodenum, jejunum and ileum. मीन्स जो सबसे पहला पार्ट होता है जो स्टमक से कनेक्टेड रहता है वो पार्ट होता है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का। देन उसके बाद जो मिडल मेन पार्ट होता है उसको बोलते हैं जेजुनम, और जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड पार्ट होता है थर्ड, दैट इज कॉल्ड इलियम। देयर आर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज विलाई। सिंगुलर को हम विलस बोलते हैं और जब बहुत सारी होती हैं उनको बोलते हैं विलाई। सो चिल्ड्रन, हियर आई विल शो यू थ्रू दिस डायग्राम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल अंदर से इस टाइप की होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसमें बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं और उनके अंदर ऐसे ब्लड सप्लाई होती है बहुत सारी। सो फूड जो हमारा डाइजेस्ट हो चुका है उसमें से जो न्यूट्रिएंट हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब होंगे? इस ब्लड में, इन ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फिंगर लाइक विलाई क्यों प्रेजेंट होती हैं, ऐसी वॉल क्यों होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो पाए। अब देखिए इसमें सरफेस एरिया बढ़ गया। अगर सीधी ये वॉल होती तो सिर्फ इतना प्लेस मिलता, बट ऐसे होने से इसका जो सरफेस है बहुत सारा सरफेस फूड को एब्जॉर्ब होने के लिए मिल जाता है। ओके, सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ विलाई, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द better absorption of food. So here they have written each villus has network of tiny blood vessels which help transport nutrients from food into the blood stream. अब क्या होता है, विलस से या विलाई जितने भी होते हैं यहाँ से फूड मटेरियल जो होते हैं, ये एक का स्ट्रक्चर दिया है इसमें कि इनमें से जैसे ही फूड जाता है और फूड इसमें अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं ऐसे, इनमें फिर एब्जॉर्ब होके और वो हमारे ब्लड में चला जाता है। ओके, और ब्लड के थ्रू फिर पूरी बॉडी तक वो पहुंच जाता है। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज एसिमिलेशन। अब फूड हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच चुका है, अब उसको आगे क्या फंक्शन करना है, वो किस पर्पस के लिए यूज होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. So the absorbed simple substances are carried through the bloodstream to different regions of the body where they are converted into complex substances that our body needs, that is proteins. For the energy supply, our body needs the transported food in the form of glucose, breaks down into carbon dioxide and water
to release energy. The food that could not be digested or absorbed then enters into the large intestine. The large intestine absorbs some of the salts and water from undigested food. सो चिल्ड्रन एसिमिलेशन में इसमें क्या दिया हुआ है कि एसिमिलेशन में क्या होता है, जितना एब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो चला जाता है ब्लड के थ्रू हमारे डिफरेंट सेल्स में. अब डिफरेंट सेल्स में जो अमीनो एसिड्स की फॉर्म में होते हैं, या हमें कहना चाहिए प्रोटीन जो ब्रेक डाउन होके जाती है, वो फिर से हमारे सेल्स में प्रोटीन बना देती है. और प्रोटीन जो है वो प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करती है, हमारे मसल्स फॉर्म करती है, हमारे हार्मोन्स बनाती है, हमारे एंजाइम्स फॉर्म करती है, और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है. देन उसके बाद हमारी एनर्जी को हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो जो भी फूड हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होके आया है वो ऑक्सीजन से जब मिलेगा और उसका ब्रेक डाउन होगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर रिलीज होगा, और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी हमारे लिए वैल्यूएबल होती है. तो ये भी क्या है, एसिमिलेशन हो रहा है. ओके, मीन्स फूड व्हाट वी एब्जॉर्ब दैट नाउ वी आर यूटिलाइजिंग इन डिफरेंट वेज. सो द फूड दैट कुड नॉट बी digested or absorbed then enter into the large intestine. अब जो फूड रह गया है, जो बच गया है, वेस्ट मटेरियल है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, हमारी बॉडी ने उसको डाइजेस्ट नहीं किया, वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाया, जो पार्ट बच जाता है वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में. एंड लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ कुछ सॉल्ट्स और वाटर वहाँ से एब्जॉर्ब हो पाते हैं उसकी वॉल से, और बाकी जितना भी फूड होता है वो फिर बॉडी से रिमूव हो जाता है नेक्स्ट प्रोसेस के थ्रू ईजेशन. सो दिस इज द फाइनल स्टेज वेयर द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड passes out of the anus as feces at the end of the alimentary canal. So children, egestion क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड अब लार्ज इंटेस्टाइन ने आगे रेक्टम को दे दिया, और रेक्टम में से कुछ देर में स्टोर रहने के बाद अब वो हमारी बॉडी से सॉलिड फॉर्म में रिमूव हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फीसेस. इसी को हम स्टूल्स भी बोलते हैं और फीसेस भी बोलते हैं. तो ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट होता है एनस, उसके थ्रू ये हमारी बॉडी से एलिमेंट्री कैनाल से रिमूव हो जाता है. ओके, सो हियर इट इज an important information about the diarrhea. So what is it? Have you ever suffered from tummy problems? For example, have you ever experienced the need to pass out watery loose stool? This condition is called diarrhea. चिल्ड्रन, जब आपको बहुत लूज मोशंस होते हैं, कभी आपको स्टमक प्रॉब्लम हो गई हो या सीवियर इन्फेक्शन हो गई हो, तो बहुत ही लूज स्टूल्स जो हैं वो हमारी बॉडी से पास होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होते हैं. इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायरिया. ओके, ये वर्ड याद रखना, डायरिया. इट इज़ वेरी कॉमन वर्ड एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज मैनी ऑफ द टाइम people use in a common language. Okay, so you should know that diarrhea is one of the most common illness in any population. Diarrhea can be caused by a virus or bacteria and is fatal if left without treatment for days, because it makes our body lose large amount of water and salts. Even before visiting a doctor, the patient must drink adequate amount of clean, boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar. This helps in restoring the amount of water and salts lost during the illness. This is called oral rehydration solution, ORS.
Pre-prepared packets of ORS are available in the many grocery stores and pharmaceutical shops, means medical stores, ready to be mixed with water. So children, in this important information they have told us about the diarrhea, means if any time loose motions happens or this condition persists for many days, then we should not be careless about this problem, because this problem can lead to dehydration. जो मैंने आपको पहले बताया, डिहाइड्रेशन जो होती है वो हमारी बॉडी में तब हो जाती है जब बॉडी से बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है, या तो लूज मोशन की फॉर्म में, या वॉमिटिंग होती है हमें जब सीवियर इन्फेक्शन हो जाती है बैक्टीरिया या वायरस की हमारे स्टमक में, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए या क्योर करने के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको घर में ही इसकी रेमेडी करना चाहिए। इन्होंने यहाँ बताया है कि आपको ORS बना के कंटिन्यूसली ऐसे में पीते रहना चाहिए। ORS क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। सो ये ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन के पाउच जो हैं वो हमारे मार्केट में भी हमें बने बनाए मिलते हैं, बट इसके अलावा भी आप घर में भी बना सकते हो। आप सॉल्ट और शुगर को मिला के, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा शुगर मिलाइए और वाटर को बॉईल करके उसको कूल कर लीजिए, और उसमें जब ये मिला के आप थोड़ा सा चुटकी सॉल्ट और शुगर और एक गिलास पानी में या एक कप पानी में जब आप इसको मिला के पेशेंट को दोगे तो उनकी बॉडी का जो सॉल्ट और जो वाटर लेवल होगा वो मेंटेन होगा, और वो डॉक्टर्स के पास जब तक आप जाओगे तब तक आपको थोड़ी रिलीफ होगी। ओके, सो वी शुड visit to doctor during this kind of situation, but before that we should go for ORS also. So children, for this is your today's class, and I conclude my class with this. Last one topic is left only about the digestion in grass eating animals. So this we will do afterward in the next class. So by the time you study about the digestive system of human being in detail, if you don't know anything, you rewind the video again and try to understand what I have taught you. Okay, so Jai Gurudev.